student stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your history civics teacher Shweta Tiwari. So student, take your history civics book and copy. Okay, because today you will write question and answer of chapter 4. Chapter 4 name is the Mauryan Empire. Okay, so student, start writing questions. Okay, because today you will write structured essay type questions. Okay, so question is question number 1. Discuss the main sources of the Mauryan period. Okay, it means in this question you will write about main sources of the Mauryan period. Mauryan period के जो main sources थे जिनसे हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, sources for the study of the Mauryan Empire. Okay, so you will write first heading अर्थशास्त्र. Okay, सबसे पहले आप जो मेन सोर्स है वो क्या है, अर्थशास्त्र है. Okay, so you will write first heading अर्थशास्त्र. Okay, note down. One of the most important sources of information on the Mauryan period is the Arthashastra by Chanakya. Okay, listen again. One of the most important sources of information on the Mauryan period is the Arthashastra by Chanakya, who was the chief advisor of Chandragupta Maurya. Who was the chief advisor of Chandragupta Maurya, full stop. The Arthashastra gives detailed information on Mauryan administration as well as the political conditions that prevailed during the period. Full stop. It means first जो main sources में आपका आता है अर्थशास्त्र एक बुक है जो कि चाणक्य ने लिखी थी. चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइजर थे. ओके, अर्थशास्त्र जो है वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि उस समय पॉलिटिकल कंडीशंस हुआ करती थी, क्या लाइफ स्टाइल था, लोग कैसे रहते थे. एंड नेक्स्ट सोर्सेस इंडिका. नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड Indica. It means you will write next heading Indica. Okay, you will write heading Indica. Okay, so write in this heading 1 minute. Okay, this Megasthenes, right, in Indica. Megasthenes tells us about the daily routine of the Mauryan emperor and gives a detailed description of the municipal administration of Patliputra, which was the capital of Mauryan, Empire and was administered by a town council which functioned through 6 committees with different functions. Okay, it means next जो sources हैं जिसमें हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में जिससे हमें पढ़ने को मिलता है, उसके बारे में जानने को मिलता है, तो वो है मेगास्थनीज की बुक इंडिका. ओके, इंडिका जो है वो नेक्स्ट सोर्सेज है, इसके थ्रू हम मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो इस बुक के थ्रू यू विल राइट इन इंडिका में आप लिखेंगे मेगास्थनीज टेल्स अस अबाउट द डेली रूटीन ऑफ द मॉडर्न एम्परर एंड गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र which was the capital of Mauryan Empire. Okay, which was the capital of Mauryan Empire and was administered by a town council which
फंक्शन थ्रू 6 कमिटीज विद डिफरेंट फंक्शन। इट मीन्स कि उस टाइम पर कैसे इसमें मौर्यन एम्परर के डेली रूटीन के बारे में लिखा गया है। जो मैगस्थनीज जो बुक लिखी है इंडिका, उसमें ठीक है कंप्लीटली डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट सोर्सेस, अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स इज थर्ड सोर्स। ओके, थर्ड सोर्सेज है ये, थर्ड सोर्स है जिसके थ्रू हम मौर्यन एम्पायर के बारे में उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो राइट अबाउट अशोकन एडिक्ट्स। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर टू कम्युनिकेट with his subjects through edicts. Full stop. To spread his ideas, Ashoka got his messages inscribed on stone pillars, caves, boulders, and rocks so that people could read them. Full stop. These edicts were widely spread throughout his empire. Full stop. They conveyed Ashoka's ideas on administration, behavior of the people towards one another and their elders, religion. Full stop. It means नेक्स्ट जो सोर्सेज है जिससे हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में, मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता लगता है, तो वो है अशोकन एडिक्ट्स। ओके, इसके थ्रू ये इंस्क्राइब किया गया है, स्टोन पर लिखा गया है, तो लोग उसको आज भी पढ़ते हैं, और जो कि ये लोगों तक मैसेज कन्वे करता है कि उस टाइम पर लोगों का जो अशोकास आइडियाज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, बिहेवियर लोगों का कैसा होता था, और जो भी दूसरे आइडियाज हैं उन सब के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियड। ओके, नेक्स्ट सोर्सेस, सांची स्तूप। ओके, सांची स्तूप। Stupas were dome-like structures built of brick and stone over Buddhist relics, okay, such as Buddha's hair, teeth, or bones. Full stop. Ashoka is known to have built a large number of imposing stoops during his reign. Okay. स्तूप्स वर डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ ब्रिक के ईंट से बनाए गए थे, डोम लाइक थे, एंड स्टोन ओवर बुद्धिस्ट रेलिक्स, रैली बनाई गई थी, सच एज बुद्धाज हेयर, टीथ और बोन्स। अशोका इज नोन टू हैव बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इम्पोजिंग। इट मीन्स इससे हम सांची स्तूप से उस टाइम के आर्किटेक्चर कंडीशन के बारे में कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता था, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, so students, these are sources of मॉडर्न एम्पायर जिसके थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, किसके बारे में, मॉडर्न एम्पायर के बारे में। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन। हाईलाइट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यंस ड्यूरिंग द एज ऑफ। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यंस ड्यूरिंग द एज ऑफ, इट मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। बिंदुसार की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, एंड अशोकास। ओके, सो नोट डाउन, फर्स्टली यू विल राइट हाईलाइट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यंस ड्यूरिंग द एज ऑफ। फर्स्ट हेडिंग नोट डाउन चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले आप इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखेंगे। यस, this is about Chandragupta Maurya. Okay, question is highlight the political history of the Mauryans during the age of Chandragupta Maurya. Firstly, we'll write heading Chandragupta Maurya, so write about this heading. Okay, Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire in ancient India. Chandragupta Maurya was the founder of Maurya Empire in ancient India. Full stop. He was taught and counseled, CONSELLED, counseled by
द फिलोसफर काउंसल्ड बाई द फिलोसफर चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था, काउंसल्ड बाई द फिलोसफर चाणक्य, कॉमा हु had great influence in the formation of his empire, full stop. Together Chandragupta and Chanakya built one of the largest empires on the Indian subcontinent, full stop. According to Jain sources के according, he later renounced his empire and became a Jain monk, और वो उन्होंने रिनाउंस्ड कर दिया था, यानी कि त्याग दिया था और एक जैन मॉन्क बन गए थे. चंद्रगुप्ता's life and accomplishment, okay, Chandragupta's life and accomplishments are described in ancient Greek. It means चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में ग्रीक टेक्स्ट में भी जो प्राचीन ग्रीक टेक्स्ट है उसमें मिलता है. हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, बट दे वेरी सिग्निफिकेंटली, ओके, जो बहुत महत्वपूर्ण है. So student, next heading related to this question, Bindusar, okay. Next heading, note down Bindusar, okay. Bindusar was the son of चाणक्य. चाणक्य पुत्र थे, तो इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में लिखना है कि ओके. बिंदुसार. Chandragupta Maurya was succeeded by his son. Chandragupta was succeeded by his son Bindusar. Full stop. Bindusar appointed his eldest son Sumana. Okay. It means चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने पुत्र, उनके राज्य को उनके पुत्र ने आगे बढ़ाया था, उनका नाम बिंदुसार था. बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुमाना, जिनका नाम जो है सुमाना, ऑल्सो नेम्ड सुसीमा, इट मीन सुसीम, सुसीम जो है उनका नेम था सुसीमा, ओके, कॉमा, एज हिज वायसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड अशोका एट उज्जैनी, ओके. फुल स्टॉप. बिंदुसार हैड अ लार्ज फैमिली, बिंदुसार की बहुत बड़ी फैमिली थी, लार्ज फैमिली थी. फुल स्टॉप. अशोका स्टेट्स इन हिज फिफ्थ रॉक एडिक्ट, जिसके बारे में अशोक ने अपने फिफ्थ रॉक एडिक्ट्स में लिखा है, दैट ही हैड सेवरल ब्रदर्स, अशोक के बहुत काफी भाई बहन थे. ही हैड सेवरल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक, फुल स्टॉप, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसार मेंटेन्ड cordial relations with the Greeks. Full stop. He ruled for 25 years and died in 273 BC में उनकी डेथ हो गई थी. इट मीन्स उन्होंने ग्रीक्स के साथ जो है उनके रिलेशन बिंदुसार ने मेंटेन किए थे, कॉर्डियल रिलेशंस, ओके. नेक्स्ट हेडिंग अशोका, ओके. नेक्स्ट हेडिंग इज अशोका. क्वेश्चन दिस, सो नोट डाउन अशोका, you will write about Ashoka, okay. This, the reign of Ashoka was the most, Ashoka means Ashok, the reign of Ashok was the most important period in the history of ancient India. He fought the Kaling War and became a Buddhist thereafter. Full stop. Ashoka sent Buddhist missions to various parts of India and Sri Lanka. Okay. It means after बिंदुसार, बिंदुसार के बाद जो है वो अशोक सम्राट, जो एम्परर अशोक थे, उनका जो बहुत इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट जो है पार्ट रहा है. और कलिंग वॉर, इट मीन्स उन्होंने कलिंग वॉर लड़ा था और अपने राज्य को और एक्सपेंड किया था. बट इसके बाद बिकेम बुद्धिस्ट देयर आफ्टर, उसके बाद ही वो बुद्धिस्ट धर्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. अशोका सेंड बुद्धिस्ट मिशन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और दूसरे देश, इतनी श्रीलंका में बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट मिशन को जो है बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने दूर दूर एरिया में इसको फैलाया था, ओके.
So next question is, okay, next question, question number third. Okay, question number third you will write by next video. So it's enough for today.